and welcome to The Print. I am Triya Gulati, and if you are a cricket fan like me, then our guest today will certainly pique your interest. From raising the finger on cricket's biggest stages to doing commentary and now finding rhythm in Haryanvi beats, Anil Chaudhary is scripting an unexpected second innings. If I just talk about his umpiring journey, between 2013 and 2025, Anil Chaudhary has umpired in 12 tests, 49 ODIs, 64 T20 internationals, and 131 IPL matches, which, mind you, is the second most on-field games by any umpire along with S. Ravi. And now, when he's venturing into acting, we are all in for it. So, welcome to The Print. Thank you for inviting me, Treya. I would first like to start with how did cricket happen? People venture into batting, bowling, but for you it was umpiring. So how did all happen? I used to play volleyball actually up to 10th class. My father used to listen commentary on radio. So initially I had no idea. Then I think in school I picked up. I picked up a little late. And then once I started, I did not look back. I played up to A division, but I was doing engineering also. So difficult to cope with the two different lines. Yeah. Because those days, playing a sport, you need to be like, your parents should, guide you. Yeah. Nothing was like this. So I was in two vehicles. One was going this way, one was this way. And then suddenly I realized that it is too late for me to, become a player or touch that level. Then one of my club mate, he used to do umpiring. So one day he could not go. He said, Anil, you go. I got money. I said, good, yeah. How much money did you get in your first It was, I stint? think, 100 or 150. Okay. And good at that age, like it was 90, 89 or 90. And that time, getting money, and you were free to watch movies, your petrol for scooter. And it's like your passion towards the game. So I used to do big games and meet a lot of players, those we used to watch on TV only. So connection with the game, getting money. So money was also a motivation, by the way. Yeah. And sir, like you said that, you filled up for a friend. After that, you never looked back. So how did one a match after the other? When did you got associated officially with BCCI and you became a regular? I think I was doing some game of league, and one of the senior umpire, he told Mr. Rambab Gupta those days, Dr. Rambab Gupta, test umpire. He said, this guy is tough. He can survive. So don't let him go. So then I did Sale Trophy. Bishan Singh Bedi used to manage that tournament, 3-day tournament. I did that game, and I think feedback was very good. Of course, big tournament, all test players were playing. Then after a few months, I was going as a player in Thailand to play Thailand Sixes from Malviya Cricket Club. There also, one fine day, they said, can you do umpiring? I said, why? No, you do umpiring league, do here also. I said, why should I do? No, you will get money. Again, that money factor came. And I got, I think, 2,000 baht per day, plus my hotel free. So I got that money back. And then every year they used to send me tickets and money, and I became professional umpire in Thailand without clearing any exam in BCCI. So that's how I picked up, and then I started doing all big tournaments, so-called big tournament of that time, Goswami Ganesh Dutt, and this Lala Raghuveer in modern school. And that's how it started. That's Scotch Trophy, Sale Trophy. And in 98, I cleared the BCCI exam, and then TV came. All the matches, all domestic games also, they use camera, and that's how I started big games like IPL in 2008. So first IPL I was part of that. And I've done till 17th IPL. So last year I was doing commentary, otherwise all IPL games. Because of IPL I became international umpire, and almost I've ticked all the boxes. Test matches, Under-19 World Cup, Men's World Cup, Women World Cup, Women ODI World Cup, T20 qualifier, umpiring in New Zealand, South Africa, Australia, almost everywhere. Sir, आपने अभी बोला कि somebody said that this guy is tough. When we talk about cricketers, we extensively talk, even when we talk about test matches, that this person has the stamina to stay for so many days. Little do we talk about the pressure and the hard work and the struggle of an umpire, sir. Triya, होता क्या है कि ना big games you need people those who can
cope up with the pressure, who can absorb the pressure. I think it was inbuilt, maybe because I used to play also. And my community, we are farmers. I think this roughness and standing under sun without any extra feeling, I think was part of my nature. And maybe few things are natural. So maybe I had that umpiring skill. That's how. पर सर क्या एक अंपायर की मतलब लिटिल डू वी टॉक अबाउट कि प्रेशर और स्ट्रगल अंपायर्स का क्या होता है? देखिए, एक तो आपको ठीक डिसीजन देने होते हैं और खासकर वो अच्छे एम्पायर होते हैं जो प्रेशर में अच्छा काम करें. ऐसे नॉर्मली एवरीवन यूजिंग बाउंड्री एंड सिक्सेस एंड लेग बाइज, एवरीवन इज सेम. एंड नाउअडेज विद ग्लासेस एंड जिंक, everyone looks same as well. Yeah. Good heads. But I think good umpires are those who do good umpiring under pressure when it matters. They perform. कोई That सर is good ऐसा umpiring. इंसिडेंट? बहुत सारे. आपको क्रूशल नो बॉल देनी है कई बारी. दो बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, कुछ चल रहा है, उसको हैंडल करना. You know, then you should have that body language, eye contact, what to say, what not to say, when to say, Right. when to intervene, when not to intervene. Yeah, in fact, like you know, जब भी on field clashes होते हैं, it is of course it is umpire's duty to step in between. तो throughout your career, were there any clashes or were there any tough spots where you probably gave a no ball or a wicket and one of the teams, they charged up at you? I think initial days when camera was not there, the quality of broadcasting was not that good. It used to be a subjective thing sometime because people used to react according to players' reaction. But now after DRS, सब दूध का दूध पानी का पानी है. मुझे कई बार लगता है आजकल अंपायरिंग करना थोड़ा इजी हो गया. थोड़ा इजी हो गया क्योंकि आप कुछ भी अच्छी कॉल करें तो DRS आपको बोलता है अच्छा किया है. ठीक है, गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो कम गलतियां करे वो अच्छा अंपायर है. ट्रू. सर कोई इंसिडेंट आपको याद हो कि आप मतलब दो प्लेयर्स के बीच में शायद फंस गए हो या कोई ऐसा क्लैश हुआ हो वेयर? हैं दो फेमस इंसिडेंट हैं, गौतम और विराट वाला. दोनों बारी मैं था और अच्छे दोस्त हैं दोनों, लेकिन मैच में कई बार क्या होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट फ्यू थिंग्स हैपेंस. और क्या होता है, आप एक चीज और ध्यान कीजिए, क्रिकेट में सब यंग लोग खेल रहे होते हैं. सो इट्स ए एज इशू आल्सो एंड यू आर प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट. A lot of people are watching, a lot of stakeholders. So it's something bound to happen. But I think yes, you should not cross the line. Sir, and हुआ क्या था वो इंसिडेंट? इतना वायरल है, so many stories have come up. पहले केस में क्या हुआ, विराट ने कोई शॉट खेला, कुछ किसी ने बोला, किसने बोला, कई बार ये भी नहीं पता लगता किसने बोला. रिएक्शन हो गई, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. कोई बार क्या होता है, कुछ प्लेयर फील्डिंग वाले वो अपनी टीम के लोगों को कुछ कर रहे होते हैं और आप बीच में आ गए तो आपको लगता है आपको कह रहे हैं. बट उस समय कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतना आपको यू आर आंसरेबल टू योर टीम, योर ओन परफॉर्मेंस, सेलेक्टर्स आर वाचिंग. सो वो सब में हो जाता है, लेकिन बाद में दोनों ने अच्छे से हाथ मिलाए. मुझे लगता है अभी गौतम ने बोला भी है किसी मैच में, अर्शदीप से कुछ हुआ. इस साइड अगर एग्रेशन नहीं है तो फिर क्या खेल रहे हो, ठीक है, बट वो एक लाइन है, उसके आगे ना जाओ. तो शायद ऐसे ही दूसरी बार भी हुआ. और वैसे भी ना, आई थिंक अगर कुछ ये इस तरह कैरेक्टर नहीं होंगे ना गेम में, तो आई थिंक आपका गेम खत्म हो जाएगा, फिर क्रिकेट में और फर्क खत्म हो जाएगा. अच्छा, ओके. सर आपने अभी थोड़ा कुछ चेंजेस बताया कि चीज़ें अब कैसे अंपायरिंग करना थोड़ा आसान हो गया है, पर उसके अलावा भी सर अगर मैं पूरे क्रिकेट की बात करूं तो अब आई थिंक यू टुक रिटायरमेंट फ्रॉम अंपायरिंग इन 2025. 25 yes, almost. Yeah, I did Ranji Trophy final. Yeah, finished. 25. सर तब में और अब में मतलब क्या चीज़ें बदली हैं क्रिकेट को लेके, अंपायरिंग को लेके और प्लेयर्स को लेके? देखिए, एक तो क्या हुआ, कुछ रूल सिंप्लीफाई किए हैं, काफ़ी बहुत क्लियरिटी आ गई है. पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी, साउथ में कुछ कर रहे हैं, नॉर्थ में कुछ कर रहे हैं, हमारे कंट्री के एम्पायर कुछ और, फिर वो डिस्कशन होता था, स्टिल वो ग्रे एरिया में रहता था. अभी जैसे एक बहुत अच्छा काम है ऑटो नो बॉल. इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑन फील्ड एम्पायर टू वॉच दिस लाइन एंड लुक इन फ्रंट ऑफ आल्सो एट 140 150 स्पीड, इवन अ गुड स्पिनर. सो दैट इज अ गुड थिंग. टीवी एम्पायर इज हैंडलिंग दैट. एंड इन IPL, India has started in IPL. BCCI has started DRS for wide and no ball, which is a trend setting for everyone. And World Cup also they were using DRS for no ball, not for wide by the way. So अभी क्या है कि आपका काफ़ी काम हो गया, आप सारे रेफरल कर सकते हो. बट हाँ, अभी भी चैलेंजेस तो हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप जरा भी गलती करते हो पकड़ी जाती है. स्टिल यू हैव टू परफॉर्म. राइट. एंड सर जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हाट वाज द टफेस्ट डिसीजन फॉर यू? इट इज़ ऑलवेज लेग बिफोर एंड बैट पैड. बिकॉज टर्नर पे खासकर एशियन कंडीशंस में जब बॉल टर्न होती है तो कई बार पता नहीं लगता कि बैट लगा, ग्लव लगा, साउंड नहीं आती. तो मुझे हमेशा लगता है कि बैट पैड और लेग बिफोर जहाँ पे बॉल का बाउंस कंसिस्टेंट ना हो, तो सेम जगह बॉल ऊपर निकल जाती है, सेम नीचे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम.
एंड सर कोई ऐसा इंसिडेंट फ्रॉम एन इंडियन मैच जहाँ पे यू हैड टू टेक अ टफ कॉल एंड मे बी इट बैकफायर्ड? बैकफायर जैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि बॉल से रिलेटेड इशू है जहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा, जिसमें कभी इंडियन कैप्टन भी होते, कभी ओवरसीज कैप्टन भी, दे वर नॉट हैप्पी द वे वी वर हैंडलिंग, बट वी हैव टू डू अ जॉब, वी कांट बी गुडी गुडी विद एवरीवन, you have to monitor a lot of things, shape anything which is going wrong with the game, fairness of the game. So everyone एंड सर is क्या same for इंडिया us. पाकिस्तान का मैच कम्स विद अ एडेड प्रेशर फॉर द एम्पायर? Yes, generally, although I have not done this because now neutral umpires are umpiring. But I have done a lot of Pakistan games, Yeah. Asia Cup final in Dubai, where it was semi-final, I think, Pakistan and Afghanistan in Sharjah. And people were fighting inside also, people were fighting outside also. राइट. So, Right. and then final again with Sri Lanka, it was a tough one, but they were good with me, no problem. सर क्रिकेट में इन द लास्ट 15-20 ईयर्स स्टार कल्चर बहुत बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो कर गया है. पहली बात तो आपका उस पर क्या टेक है? देखिए, कुछ चीजें ना आपको कॉइन के दो हैं, हेड एंड टेल, तो वो साथ में आता ही है. आपका बम पहाड़ तोड़ने काम भी आता है, बम आपको लड़ाई में भी काम आता है. और आई थिंक जब से सोशल मीडिया है तो ये ग्राफ बहुत बढ़ गया बहुत है. बढ़ गया, हाँ. प्लस माइनस दोनों है. फायदा भी अच्छा है ना गेम को ज्यादा. पर सर फिर वो स्टार कल्चर अंपायर्स को लेके क्यों नहीं आ पाया? शायद आने लगे, तभी तो गाना किया है. Sir, my next question was actually in that direction only, that you have raised fingers on the cricket field and now you're raising eyebrows with your music debut. How did this transition happen? Actually, when I left umpiring, that this BCCI umpiring and international umpiring, before I think before 3-4 months, I started giving podcast and started commentary with Jio Hotstar, so that I took that freedom. So then I said, people said, you look good on TV, your communication is very good, your vocal bass and all is very good. So मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि कुछ फोटो देखी होगी मेरी, यार तो फोटो देने लग रहा है. मैं ठीक है तो करो. मुझे लगा मजाक में कर रहे हैं. और फिर मैं गोवा में था, मुझे 3 दिन पहले कहते हैं आ जाओ यार, ये तो 3 तारीख को आ सकते हो. मैंने कहा नहीं, 5 को. मैंने कहा चलो 5 को आता हूँ. और एक ही दिन में शूट हुआ सारा. क्रू बहुत बड़ा था, एपिक फिल्म्स ने किया, और मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, सुमन गोवा. Okay. वो फैशन डिजाइनर भी हैं. और मैंने बोला विपिन भारद्वाज जो गलवान में एक्टिंग कर रहे हैं, जी. ही वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग. जब मैंने किया तो मुझे बाद में बोले कि यार जब ये सर ने बोला ना कि उनको बुलाना, तो हम बड़ी मुश्किल में थे कि कहाँ यार, ना तो कोई रिहर्सल करने आए, ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, कैसे होगा. लेकिन जब आपने जिस स्पीड से आपने काम किया, सर मतलब आप डायरेक्ट शूट करने पहुंच गए थे? नो ट्रेनिंग, नो नथिंग? कुछ नहीं. टाइम ही कहाँ था, मैं गोवा था, टूर्नामेंट कर रहा था, एक लेजेंड किया. और वो बोले खाली आप ही को एक्टिंग नहीं करानी पड़ी, बाकी परेशान हो, क्योंकि बहुत लोग थे पीछे ना, बंदूक वाले, डांसर, ये वो. कहता आप अकेले थे जिन्होंने एक्टिंग नहीं भी की और आपसे करानी भी नहीं पड़ी. वो सो नेचुरल. और सर उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए जो मेरे को, क्योंकि हम लोग अंपायरिंग में और क्रिकेट में सब होता है ना कि आपको की पॉइंट्स बता दो, वी मैनेज. वो मैं पकड़ लिया और शुरू. और सर आपका तो वो एंट्री शॉट सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गया, वेयर देयर इज लाइक यू आर स्मोकिंग एंड द स्मोक कम्स एंड देन इट क्लियर्स एंड यू नो यार वो चॉकलेट वाला सिगार था. यस. और मैं पीता नहीं हूँ सिगरेट ना. तो दैट वाज अ चॉकलेट सिगार. हाँ जी. बट उसमें भी कुछ तो था. मेरे को बाद में गार्गल सब करना पड़ा, क्योंकि मेरे गले में वो क्या हुआ फिर, वो क्योंकि वो बार बार रीटेक होता था ना, जब पीछे कोई हिल गया, किसी का गन इधर हो गया, तो वो उस चक्कर में बार बार पूरा पीना पड़ गया मेरे को, ऑलमोस्ट मेरा यहाँ तक. राइट. हाँ. बट कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी गुड यार. मतलब जो लोगों ने फिर उसके बाद मुझे बोलना शुरू किया, जो कॉन्फिडेंस आया, फिर जब गाना रिलीज हुआ, जब मैंने देखा, बाप रे बाप, मैं खुद ही को देख रहा था, मैं ही हूँ. मैं तो एक्चुअली, मेरे को शर्म आ रही थी यार, मैं इधर उधर देख रहा था कि ये सब मेरे को भी देख रहे हैं. राइट. सर एम्पायर्स यूजुअली, जो मैंने अभी पहले बोला भी कि वो स्टार कल्चर एम्पायर्स में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं एम्पायर्स स्पॉटलाइट से थोड़ा दूर ही रहे हैं. तो आर यू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी? या क्या प्रॉब्लम है, आप काम कीजिए और आपने जो सीखा है वो बताइए लोगों को इन वेरी सिंपल मैनर. बिकॉज ऐसे तो आजकल आप फोन पे हाथ मारिए, सारे लॉ लिखे हुए हैं, उसे कौन तो पढ़ेगा, कौन समझेगा, कहाँ उसका इम्पैक्ट है, लॉ की स्प्रिट का, कहाँ पे क्या लगाना, वो समझ नहीं आता. आई सिंप्लीफाई दैट, and because I have done umpiring at every level, from village to international to World Cup to Test match. So मुझे वो पता है कि कहाँ जाके प्लेयर अटकते हैं, क्योंकि मैं उसको एज ए प्लेयर समझता हूँ कि मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरे को क्या समझना है. तो वो फिर मैं अंपायर बन के वो बीच का जो गैप है, आप मेरे जितने भी, मेरा अंपायर्स कॉल बाय अनिल चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल है,
और इंस्टा पे भी होता हूँ, तो आप देखेंगे वही सब लोग बोलते हैं कि आप इम्पैक्ट पॉइंट बताते हो, वो वही है जो मुझे लगता है कि अगर मैं प्लेयर होता तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, मैं वही बताता हूँ बस। सर पर जैसे आपने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई फर्स्ट, लाइक आप सीधा सेट पे शूटिंग करने पहुंच गए, पर सर इतने लंबे समय तक एम्पायरिंग करने के बाद, विच इज लाइक यू नो यू हैव टू स्टिक बाय द लॉज, क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिव फ्रीडम तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता। देन ऑल ऑफ अ सडन यू जंप इनटू अ फील्ड विच इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। कोई चैलेंज आपको फेस नहीं किया, या आपने आपके दिमाग में भी आपको कभी ऐसे मतलब ये डबल सेकंड थॉट नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डिफिकल्ट तो नहीं होगा? देखो कभी तो आपको वो अपना जो है ना कंफर्टेबल से आगे निकलना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है करते हैं। मैंने एक सीआईडी भी किया था उससे पहले, एक मेरा गेस्ट रोल था, आपने देखा नहीं होगा। अंशा और दया मेरे दोस्त हैं, ओके तो वो किसी मैच में आए थे, तो उन्होंने कहा शूटिंग पे आ जाओ। मैं शूटिंग पे गया, उन्होंने अच्छे से खाना वाना खिलाया, बोले रोल करोगे, कपिल देव जी ने किया एक बारी। मैंने कहा हाँ। तो मैं बॉम्बे कमेंट्री पे था, मैं जियो स्टार के जब करता हूँ तो गैप था, मैंने बोला मैं 3 दिन फ्री हूँ, कहते आ जाओ। देन आई हैड 2 days शूट, और वो ढोलकिया क्या नाम है वो सब मेरे साथ थे, मतलब उसमें ही विलेन ही था। मैं विलेन ही बनता हूँ, एम्पायर विलेन ही होते हैं मुझे लगता है। तो वो था कॉन्फिडेंस मुझे। तो ये सेकंड था एक्चुअली मेरा, सेकंड था ये सीआईडी आपका। कर चुका हूँ। तो सर फुल ब्लोन एक्टिंग करियर बनाने का प्लान है आपका? आने लगे हैं, मेरे को साउथ से आ रहे हैं। मैं आ रहे हैं सर, मतलब हाँ, क्या क्या ऑफर आया है? कोई अभी कुछ तो डिटेल दीजिए। जज का रोल एक आया है, अच्छा। नाम पिक्चर का नहीं बता सकता, क्राइम रिलेटेड स्टोरी है। वो एक कैमियो टाइप 2 दिन का है। सो देखूंगा, जाऊंगा, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, तो अगर आ जाओ आप। हाँ ठीक है जाता हूँ। मैंने कहा मैं बोलूँगा कैसे, तमिल कहते विल मैनेज विल ट्रेन यू। ओके हाँ जी। सर आपके सीआईडी का रोल तो चलो एक तरफ, पर ये जो आपका म्यूजिक वाला, इट सॉर्ट ऑफ ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मेरे गांव में भी लोगों को बहुत पसंद है, खूब बज रहा है। और अभी यूट्यूब पे तो है ही, स्पॉटिफाई पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी जो आता है अपने आप गाना उसमें भी है। और मुझे भी, मैं सुनता हूँ तो अच्छा लगने लगा है बरत दबा के, क्योंकि ना मेरे को म्यूजिक बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग कह रहे हैं जी वो देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ। किसी को दोनों। हाँ। कल मैं आपके जर्नलिस्ट का कोई टूर्नामेंट होता है, पूरे इंडिया के लोग खेलते हैं, तो कल मुझे फोन आया था आपके किन्हीं का कि आप आ जाओ। सबने अपना गाना, मैंने कहा मेरा गाना कैसे चला? कहते हैं हम लोग क्लब में थे तो कुछ चला रहे होंगे वो, तो उसी रैंडम में गाना चल गया। और फिर विद इन 30 सेकंड लोगों ने बुलाया तो एम्पायर है, तो वो दे वर शॉक्ड कि ये कैसे, सब मेरे से ही पूछ रहे थे कल। सर तो ये तो आपके गांव से जो रिएक्शन आ रहा है, या यहाँ पे अभी जब आप जहाँ जा रहे हैं, क्रिकेट फ्रेटर्निटी से किसी क्रिकेटर का, फॉर्मर क्रिकेटर्स, आप कितने लोगों को जानते हैं? कुछ ऐसा फनी रिस्पॉन्स, कोई चीकी टेक किसी ने आपको भेजा हो? मैं गया जियो हॉटस्टार अगले दिन कमेंट्री करने, तब गाना रिलीज हो गया था। वीरू, चहल, रैना, आकाश चोपड़ा और शिखर का तो मुझे फोन आया। शिखर शादी करके ही कहीं था, वहीं से आया, चौधरी साहब गोली तो चलेगी, क्या बात है यार आपका, अब बहुत बढ़िया बनाया आपने। मैंने कहा यार वो डायरेक्टर का कमाल है, मैं तो जो बोला किया। सबने डाला, और सबसे बड़ी बात है हार्डी संधू, वो तो सिंगर ही है जी। कह रहा भैया वाह भाई, उसने इन सब ने स्टोरी भी डाली है। ऑल ऑन सोशल मीडिया। कोई फनी रिस्पॉन्स किसी का? हरभजन बोला भाई ये उधर भी उंगली कर रहे हो, यहाँ भी, हमें तो छोड़ दो, क्या क्या करोगे। ये हार्डी ने भी कुछ ऐसे ही बोला कि उधर भी और हमारे वाले में भी घुस गए। But they were happy, I could make out by the body language, they were enjoying the song. मैंने देखा फोन पे सुन रहे हैं। और सर आपके गांव में क्या रिएक्शन है? घर रिलेटिव्स क्या बातें कर रहे हैं? हम लोग जाट कम्युनिटी से हैं, वो गाना उसी टाइप का है, हम लोग का ऐसे ही कल्चर है, मतलब थोड़ा रफ टाइप। वेरी हैप्पी, चल बज रहा है, शादी ब्याह में, एफ बार में चल रहा है, क्लब्स में चल रहा है, और काफी जगह चल रहा है। सर अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक आपके लिए कितना मायने रखता है, या किस तरह के गाने आपको सुनना पसंद है, और हरियाणवी म्यूजिक पर्टिकुलरली कितना पार्ट रहा है आपकी जर्नी का? देखिए मैंने 1-1.5 साल से सबसे हरियाणवी की कमेंट्री शुरू किया, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ, तो मेरी लैंग्वेज ऑलमोस्ट वैसी है 50%। और तब से मैंने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया, मैं उसी मोड में चला गया हूँ, काफ़ी हरियाणवी गाने सुनता हूँ। बहुत सारे सिंगर मेरे दोस्त भी हैं, नाम नहीं लूँगा वरना एक का लूँगा दूसरा बोलेगा, खूब उनसे बात होती है, हमारे शो में भी आते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही हुआ। और म्यूज़िक किसको अच्छा नहीं लगता है? म्यूज़िक तो आपका ऐसा ना रीबूट करता है आपके सिस्टम को। रफ़ी साहब के गाने सुनो, किशोर के सुनो, अरिजीत के सुनो आजकल, और मैं तो हनी सिंह के भी सुनता हूँ, बादशाह के भी, हर तरह के गाने, नए लड़के बहुत बड़े बड़े गाने गाते हैं। तो मतलब सर आपका पूरा प्लान सेट है कि हरियाणवी म्यूजिक का नेक्स्ट स्टार आप ही बनने वाले हैं? नहीं, हरियाणवी म्यूजिक क्या हो, तो अभी ओटीटी भी, अब तो एक्टिंग ही शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। कुछ ऐड कर रहा हूँ, वो भी एक्टिंग ही तो है। बॉलीवुड भी है फिर नेक्स्ट इन लाइन? इसमें बॉलीवुड वाले ही थे सारे, जो क्रू थे, जो कैमरामैन, सब बॉलीवुड वाले ही हैं।
Sir, you know, umpires rarely get to show their personality on field, right? तो क्या ये क्रिएटिव फील्ड, चाहे एक्टिंग हो गई या म्यूजिक इंडस्ट्री में हो गया, डिड इट हेल्प यू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ योरसेल्फ, कि आपको लगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, आई मुझे थिंक तो पता नहीं था? फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, नॉट कैमरा शाई। और जैसे मैं अभी वो एक कोर्स में कराता हूँ, वॉइस एंड वर्डिक्ट, जहाँ पे हम लोग एम्पायर्स और कमेंटर्स को ट्रेन करते हैं, तो वहाँ भी वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और मेरा सर्कुलेशन भी ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा लोग मिलने लगे हैं, ज़्यादा लोग आते हैं काम के लिए। प्लस मेरा यूट्यूब चैनल है ही, जहाँ पे मैं लोगों के क्वेश्चन आंसर देता हूँ। मेरे को रोज 1000 के करीब क्वेश्चन आते हैं, तो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं मैं निकालता हूँ। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के भी होते हैं, वो गली क्रिकेट के भी होते हैं। अच्छा। एंड मिलियंस में है, वो सब चलता रहता है। राइट। और सर, जैसे आपका जो म्यूज़िक सॉन्ग है, म्यूज़िक वीडियो है, उसकी बात करें तो चाहे जो लिरिक्स पकड़ना हो, वो थोड़ा एक्सेंट पकड़ना हो, रिहर्सल तो आपने बोला आपने करे ही नहीं थे बिल्कुल भी, और पर वो पूरा जो शूटिंग एक्सपीरियंस था, वो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाउ डिड इट फ्लो? ब्रिलियंट। एक्चुअली एक मेरे को एडवांटेज क्या हुआ, जैसे मैं कमेंट्री कर रहा हूँ वहाँ पे ना, ये सब मेकअप और ये सब आपको क्लोथिंग और कहाँ देखना है, कब आवाज़ रोकनी है, कब बोलनी है, प्रोड्यूसर का सब यहाँ पे आता है, 5-5 आवाज़ें आती हैं। सो यू लर्न दैट आर्ट। जैसे आज भी बैठा तो मैंने बोला क्यों बोलो, आदत पड़ गई है। वो मेरे को एक्टिंग में भी काम आया। तो जब वो सब लोग कैमरा एंगल देख रहे थे तो मैंने डायरेक्टर से बोला, मेरे विच कैमरा आई हैव टू सी। सो ही वाज वेरी हैप्पी यार, कि मतलब एम्पायर को पता है कैमरा कौन सा देखना है। बिकॉज ऑफ कमेंट्री आई थिंक आई पिक्ड अप लॉट ऑफ थिंग्स विच इज हेल्पिंग इन माई एक्टिंग ऑल्सो। राइट। अभी वही मेकअप, कौन सा एंगल, किस कैमरे को देखना है, सीधा करना है, चिन अप या जो भी। राइट। सर, थोड़ा अगर मैं आपको टाइम में पीछे लेके जाऊँ, बिफोर इवन क्रिकेट एंटर्ड योर लाइफ, जब आपने अपनी फैमिली को बताया था, अपने पेरेंट्स को बताया था कि आपको एम्पायरिंग करनी है या क्रिकेट परस्यू भी करना है, तो क्या रिएक्शन था? और उसके बाद जब आपने इतना प्रोलिफिक करियर बना लिया उसके अंदर, उस वो चीज़ परस्यू करके, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे फादर एक्चुअली वॉलीबॉल प्लेयर थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया मैं कुछ भी करूं। और बाकी लोग बोलते थे कि यार ये, मेरे फादर टीचर थे, कि अरे मास्टर जी ये किस काम पे लगा दिया यार, ये सुबह निकलता है, इंजीनियरिंग करा रहे हो, मैकेनिकल, और ये कहाँ, ये तो इतना अच्छा करियर है, कहाँ जा सकता है। तो मैं लोगों को तब टालता था कि नहीं नहीं मैं बाद में कर लूंगा। तो मेरे कज़न या जो भी, उन दिनों सब इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग करते थे सब, कि भाई कर ले, बाद में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे को नहीं करनी। तो ऐसे करके लगा रहा, और फिर अब वही लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को यार इसमें कैसे होगा। मैंने कहा आप तो पहले गाली देते थे। तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जैसा काम था। एम्पायरिंग कौन करता था तब? तब इतना ग्लैमर भी नहीं था, तब इतने पैसे भी नहीं थे। बट मेरा जो आई थिंक क्रिकेट वाला है, प्लस मनी दोनों ने मेरे को। राइट। सर, जैसे क्रिकेट परस्यू करने की तो अकेडमीज इतनी होती हैं, पर अगर कोई फ्रॉम द बिगनिंग अंपायरिंग, बहुत कम आप लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि नहीं हमें एम्पायरिंग में करियर बनाना है। तो यूजली इट इज़ दैट फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ टेस्ट मैचेस खेले हो, कुछ ओडीआईज खेले हो, उसके बाद वो एम्पायरिंग परस्यू कर लेते हैं। तो एम्पायरिंग एज अ करियर हमेशा एक बहुत सेकेंड चॉइस या एक्सीडेंटल रहा है। अब ऐसा नहीं है। अब बीसीसीआई इतना अच्छा पे करती है आपको, जितने एसोसिएशन है उनको इतना फंड्स आते हैं, तो अब लोकल मैचेस में भी काफ़ी पैसे मिलने लगे हैं, और बहुत यंग लड़के मेरे पास आते हैं। इनफैक्ट मेरे कोर्स में तो 20, 21, 18, मैं रुक जा भाई 2 साल और खेल ले। वॉइस एंड वर्डिक्ट में बच्चे हैं जो 17 साल के हैं, उनके पेरेंट्स करते हैं सर, लड़कियां भी हैं, बिकॉज विमेन क्रिकेट बहुत ग्रो कर गई है। और बीसीसीआई ने जो किया, और वो जीते भी हैं यार, क्या परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप जीता। तो दोनों तरह के लोग आते हैं, और अच्छी अच्छी कंपनी में जो काम करते हैं, बड़ी बड़ी, उस पर कहते हैं नहीं यार हम लोग पार्ट टाइम कभी कभी करना चाहते हैं, वीकेंड पे फिटनेस भी रहेगी और गेम से जुड़े रहेंगे। खेल तो सकते नहीं अब, काफी लोग जो खेल नहीं पाए, बट दे वांट टू कनेक्ट विद द गेम, सो दे वांट टू डू यार। अभी तो है करियर, अभी लोग बहुत आने लगे हैं, तो ग्लैमर आने लगा है एम्पायरिंग में। टीवी पे आते हो तो आजकल तो सोशल मीडिया और टीवी तो करता ही है। पर मुझे लगता है जो एम्पायरिंग करते भी हैं, करंट भी कर रहे हैं, थोड़ा ना प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल मरे हुए ना दिखाई दें ऐसे, क्या हो गया, स्पोर्ट है यार, थोड़ा एंजॉय करो, फोकस करो टाइम पे, लेकिन थोड़ा हंसो भी यार। वैसे एम्पायर अगर हंसेगा तो फिर कैसे डिसीजन कैसे देंगे? नहीं मौके पे हंसो ना, ये नहीं कि कब हंस रहे हो, पर ऐसे ना रहो बिल्कुल कि आप कोई वॉर में जा रहे हो। आपको लगता है कि आई थिंक, मुझे लगता है बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं। आप देखिए काफी लोग आपको ऐसे लगेंगे जैसे एग्जाम चल रहा है, ऐसे कर रहे होते हैं यार, क्या है, गो विद द फ्लो मैन, गो विद द फ्लो। सर, जैसे आपका जो कोर्स है उसमें जब आपके बच्चे एनरोल करते हैं, उसमें आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें की बातें उनको क्या बोलते हैं कि एज एन एम्पायर ये बातें एक होता है ना, बेस फॉर्म करती हैं, फाउंडेशन ले करती हैं?
हम लोग ऑनलाइन करते हैं इसको, और मैं क्या करता हूँ, मैं भी होता हूँ साथ में, मैंने कुछ ऐसे रखे हैं जो थ्योरी टाइप है बहुत, जो वो भी जरूरी है। सो बीच का जो ग्रे एरिया है ना, हाउ टू अप्लाई द लॉ, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज स्पिरिट ऑफ लॉ। ओके, यू कांट ब्रेक द रूल, बट हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ द गेम यू कैन बेंड इट, बिकॉज यू आर हेल्पिंग द गेम, एंड यू गॉट टू बी केयरफुल कि अनफेयर ना कर ले कोई। वो तरह की एम्पायरिंग करनी चाहिए, और एम्पायर को बहुत पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग गेम नहीं चला रहे, गेम प्लेयरों के लिए चल रहा है, हम सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं। गेम को कंट्रोल ना करें, गेम को कंडक्ट करें, एंड वर्किंग रिलेशन रखें प्लेयरों से। बात करें यार, उनमें भूत थोड़ी है, वो खा थोड़ी जाएंगे आपको, बात करो अच्छे से, राइट। और एम्पैथेटिक रहो, सिंपैथेटिक नहीं, और अपना काम करो। काम करना तो करो, फिर आप आपके काम में फिर ये नहीं कि इसे देख के डर गए, उसे देख के शर्मा गए, उसे देख के घबरा गए, उसे देख के खुश हो गए। यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एम्पैथेटिक रहो, सिंपैथेटिक नहीं। इसका क्या मतलब, इसको एग्जांपल देके अगर आप कुछ इसको एक्सप्लेन कर पाए। सम टाइम लाइक किसी को इंजरी हो गई, आजकल गाइडलाइन है कि 4 मिनट के अंदर उसको तैयार होना है। यार आपको दिख रहा हो बेचारा बिल्कुल ही हो गया, तो 4.5 मिनट हो जाएंगे, कौन सा पार्ट टूट गया यार, बिकॉज आपको पता है कि जेन्युइन इंजरी है, और जब आपको पता है कि मैनिपुलेट करा, तो फिर 1 मिनट भी मत दो भाई। देन यू गॉट टू बी फर्म एंड पोलाइट। मुझे लगता है अच्छे अंपायर को गेम की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। Those who don't understand the game, they can't be good umpire. Understanding what is next, what can happen after 5 overs, what is coming, which are the two players, getting aggressive. एकदम से नहीं होती चीजें, धीरे धीरे 1 2 3 होती है। रेयर कभी होता है एकदम से होता है, नहीं तो चीजें हो रही होती हैं। आप बचना शुरू करते हो उससे, आप जान छुड़ा के स्क्वायर लेग पे जाते हो कि वो देखेगा, वो कहता है ये देखेगा, फिर दोनों नहीं देख पाते। राइट। और सर जब कोई वो स्टार फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो क्या चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं, इंटिमिडेटिंग हो जाती हैं क्या एम्पायर्स के लिए? आई थिंक तब आपको, मुझे हमेशा लगता है कि जो एम्पायर है उनको ना, जो स्टार प्लेयर हैं उनको इंसल्ट ना करें, बिकॉज दे हैव अ बिग रोल इन द गेम, बट डोंट फेवर देम। देन यू गॉट टू बी फर्म, यू गॉट टू बी अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट व्हाट यू आर डूइंग, बट यू गॉट टू बी रेस्पेक्टफुल फॉर ऑल दोज गाइज। उनको ऐसे करके ना बोला इधर आ उधर जा, ऐसे नहीं यार, वो इज अचीव समथिंग विद द स्पोर्ट। कोई इंसिडेंट जब आपने टैकल किया हो कोई स्टार प्लेयर के साथ? बहुत सारे मैंने, कोई एक दो वार्नर को मैंने कई बार बात की है, पोलार्ड को मैंने बहुत बार बात की है, अशोक डिंडा रिटायर हो गए, वो एक बार मैच में थे, तो कुछ बाहर जा रहे थे, आउट नहीं हो रहा था, या कैच वैच छूट गई, तो यू वांटेड टू गो आउटसाइड। सो कई बार सब्स्टिट्यूट देने में कुछ सोचना पड़ता है कि अरे कहीं ये तो नहीं कि आराम करने के लिए जा रहा है, इसके आपस के कुछ है, तो ये क्यों बाहर जा रहा है। तो देन आई सेड, अशोक यू आर स्टिल डूइंग वेल, सेलेक्टर्स आर वाचिंग, तू बार बार बाहर जाएगा ना, तेरी फिटनेस पे आ जाएगा। और नहीं सर कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा तो अंदर रह ले। ये टूक 5 विकेट्स, वो मेरे को अभी तक भी उसको याद है। फिर बाद में कुछ मैचेस और हुए, तो खुल के तो नहीं बोला, पर आई कुड मेक बॉडी लैंग्वेज की उस दिन की थोड़ी सी बात। आपको कई बार टैक्टफुल होना पड़ता है, कई बार प्लेयर को नहीं पता होता कि उसका नुकसान होने वाला है। टेल हिम डोंट डू दिस। कभी आपने ऐसा आप मेक श्योर करते हैं कि वो हो? कभी ये स्लाइवा का शुरू हुआ नया ना, तो मैं वुमेन टेस्ट मैच कर रहा था, तो एक प्लेयर थे, वो शायद कुछ की आदत होती है ऐसे करके हाथ लगाने की। मैंने 2 बार देखा, मैं उसको पहली बार में फाइन भी कर सकता था। मैं क्या बात की, अलाउड नहीं है, और ये गलती से होने वाला है तेरे से, और ये आजकल चीटिंग में आता है, ये स्लाइवा लगाना बॉल टैंपरिंग का पार्ट हो गया है। अरे सर मैं कभी बिल्कुल मत करो, कैमरे पे आ जाओगे। जाके बोलते नहीं किया उसने, और मैंने बैट्समैन के सामने ही बोला, बैट्समैन भी सुन रही थी, क्या बुरा किया। कोई लाइन के पास आ रहा है, उसको बोल दो यू आर क्लोज टू लाइन, केयरफुल, क्या है इसमें बुरा। कोई बैट्समैन बार बार ऐसे भाग रहा है कि बहुत क्लोज है, बोल दो भाई तेरा शॉर्ट रन हो जाएगा। तो आपने क्या मतलब क्या है इसमें, क्या आपने कोई साइड थोड़ी ले रहे हो। बट यू गॉट टू बी ओपन अप फ्रंट, एंड साइड में जाके कुछ मत करो भाई, खुल के करो आराम से। फिर आपका परसेप्शन क्रिएट होगा प्लेयर्स के बीच में, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बात करता है, लेकिन हमें पता है क्या बात करता है। और सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बैटिंग एक फेज था क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट की भी अगर बात करें, तो एक फेज था जब बहुत फाइन्स भी हुए, बहुत प्लेयर्स के करियर्स भी खत्म हो गए इस चक्कर में। क्या अंपायर्स को भी कोशिश करी जाती है? की जाती होगी, कुछ किस्से आए भी हैं, आपने देखो सोशल मीडिया और न्यूज़ में आए भी हैं। आई थिंक एजुकेशन का बड़ा रोल है। अच्छा। अभी पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है इस फील्ड पे, हर टीम के साथ एंटी करप्शन है, हर बस में एंटी करप्शन होता है, अंपायर्स के साथ भी मॉनिटरिंग रहती है। इनफैक्ट हमारे तो रूम में ही होते हैं, कई बार साथ में खाना खा रहे होते हैं, दे डोंट डिस्टर्ब अस बट दे आर देयर। सो इतना एजुकेट लोगों को कर दिया, पहले लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही मैंने फ़ोन उठाया घर में और पूछ रहे हैं मौसम कैसा है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं बारिश होएगी। इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन,
तो वो एजुकेट करते हैं आजकल कि आपने ये करना, ये नहीं करना। आपकी टीम के आसपास लोग घूम रहे होते हैं, आपको कुछ ऐसी गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब आपको कोई मतलब ही नहीं है। और बहुत सारे हनी ट्रैप टाइप काम भी होते हैं। तो वो ट्रेनिंग बहुत हो रही है बहुत टाइम से। बीसीसीआई का पूरा डिपार्टमेंट है, इन एवरी गेम यू हैव एंटी करप्शन। सो वो ट्रेनिंग के बाद आई थिंक एजुकेशन से फ़र्क पड़ा। सर एक और चीज़, जैसे हर मैच में एक एम्पायर नहीं होता, हमेशा 2 एम्पायर्स होते हैं, तो मुझे उसकी दोनों एम्पायर्स के कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग उस पे जानना था कि कितना हेल्पफुल होता है कि या एक क्या गुड कॉप बैड कॉप वाला पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, या दोनों ही गुड कॉप बन के चलते हैं, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि दूसरा एम्पायर, जैसे आपने एक इंसिडेंट में बोला भी, मैंने वो बात पकड़ी, आपने बोला कि कई बार होता है कि कोई नहीं देखना चाहता, वो स्क्वायर लेग पे जाके खड़ा हो जाएगा कि दूसरा देख लेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो दोनों में एक कंपैटिबिलिटी दोनों एम्पायर्स में? आई थिंक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह रहे हो 2 ऑन फील्ड, लेकिन अभी 4 एम्पायर होते हैं। 4 एम्पायर। टीवी एम्पायर का बड़ा रोल है। जी। वो इनपुट देता रहता है आपको कि देखो ये सब ध्यान रखो, पीछे शायद वो बॉल मार रहा है नीचे, वो भी एक टेम्परिंग का पार्ट है। और कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, कोई एग्रेसिव हो रहा है, कई बार आप इतना फोकस करते हो ऑन फील्ड, आपको पता ही नहीं कि वो प्लेयर उसके क्लोज चला गया था। टी विल से दैट जस्ट टॉक टू हिम। और फोर्थ एम्पायर भी बहुत सारे इनपुट देता है कि यहाँ से लोग कोई कुछ और भी बड़ी चीज़ें हैं। और अगर दोनों का नहीं है, मैं 2 की बात करूं फिलहाल, अगर नहीं है ना कोऑर्डिनेशन, तो आप कैसे झेलोगे 22 आदमियों को? 22 भी कहाँ 30 होते हैं, सब्स्टिट्यूट, कोच, ये वो। तो आप अगर 2 आदमी साथ नहीं हो तो इतना सारा बवाल कैसे झेलोगे? यू हैव टू बी टुगेदर। और जनरली क्या होता है, ऐसे आइडियल टीम है कि एक आदमी ये पार्ट का ध्यान रखे, दूसरा ये वाले का। कुछ लोग थ्योरी में बहुत अच्छे हैं, आई थिंक दे शुड बी टीवी एम्पायर मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ लोग ऑन फील्ड बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। और मेरा मानना है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका परसेप्शन क्रिएट करती है। फिर जो बाकी चीज़ें आप करते हैं, मैनेजमेंट, वो आपका कहते हैं ना सोने पे सुहागा, इस तरह से है। टीम वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एम्पायर जिनके साथ आपको काम करने में बड़ा मजा आया हो? काफ़ी लोग, नितिन और मैंने बहुत एम्पायरिंग किया। नितिन का डेब्यू मेरे साथ बीसीसीआई का भी और इंटरनेशनल मैच का भी। हम लोग मस्ती करते थे खूब, लेकिन आई कांटेक्ट इतना तगड़ा था, जरा भी कुछ होता था ग्राउंड पे पकड़ लेते थे और ऐसा लगता था कि मैच कब खत्म हो गया। बहुत सारे एम्पायर मैंने सैमन के साथ भी की है, बिली बॉर्डन के साथ भी की है, डिफरेंट काइंड ऑफ। या वो बड़ा अलग कैरेक्टर है। तो मुझे कोई ऐसा कोई बहुत खराब को मिला नहीं। मुझे कई बार उन एम्पायर से बहुत दिक्कत है जो लॉ करके ना वो प्लेयरों के पीछे पड़े रहते हैं। वो मैं कहता हूँ रुक यार, मैं देख लूंगा, तू अपना आउट नॉट आउट दे, या दिस आई विल हैंडल। जैसे सर कोई एग्जांपल? यार नहीं नाम लेता, बहुत नाम मत लीजिए, इंसिडेंट बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, जो घर से शुरू होते हैं, जिनकी बात ना तो ग्राउंड वाले को समझ आती, ना किसी और को, ना कैटरिंग वाले को, वो इंग्लिश ही बोलते रहते हैं और वो जानबूझ के बोलते हैं। तो नहीं सर, नाम मत दीजिए, बट कोई इंसिडेंट जहाँ पे कोई XYZ एम्पायर। Yeah, one big IPL game. This new thing came where अभी क्या होता था पहले, अभी इंटरनेशनल में भी अभी ऐसे कि आपका 19th ओवर जब शुरू होता है तो बस उतना ही टाइम लेते हैं। वो पूरे ओवर में कितना टाइम लगता है वो नहीं लेते, खत्म कर देते हैं। सो इंट्रोड्यूस किया था IPL में कि लास्ट ओवर का भी टाइम लेंगे, उसको भी। सो हमने बोला, पहले ही मैच था कि मीटिंग हुआ कि यार ये अभी देखते हैं 1-2 मैच, अभी इनको थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे। Will be little consistent but little practical because new thing has started. So keep updating them frequently. हुआ और वो तो साहब ने तो वो टीवी एम्पायर थे, पहले दिन ही पहले तो हमको बोला कि नहीं यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, एग्जाम्पल सेट करना है। अरे यार मारोगे क्या इनको, इतनी गर्मी हो रही है। मैच के बाद वो तो थे टीवी एम्पायर, तो वो शुरू 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। यार अब 10 सेकेंड क्यों दे रहे हो भाई, 15 सेकेंड क्यों दे रहे हो, हाफ मिनट दे दो। बॉल बाहर जाती है तो बॉल आती है तो गेम रुकता है। नहीं, बॉल इज नॉट रेडी। अरे बॉलर रोबोट नहीं है कि वो ऐसे खड़ा रहेगा, बॉल है कि देखो मैं तैयार हूँ। वो भी देख रहा है ना कि बॉल नहीं आ रही, बैटर भी देख रहा है। तो ओवरऑल वही हुआ मैच के बाद, फाइन। देन रेफरी ऑल्सो, व्हाट टू डू? आई सेड दिस गाय, इफ यू डू समथिंग ही विल से वी आर वीक, सो लेट हिम डू। एंड टीम्स वर अवेयर दैट हु इज डूइंग दिस। देन he faced, because he was not doing good practical thing. Right. He was doing too much policing. I think he must have realized later, but by the time that's the difference. Right. और सर एज एन एम्पायर ऐसे क्या कुछ रूल्स हैं जो आपको लगता है क्रिकेट में आने चाहिए, और कुछ रूल्स जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल अननेसेसरी हैं? बहुत सारे हैं जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी हैं। कौन से? जैसे बहुत सारे क्लॉजेज हैं डेड बॉल में, वो उनको बहुत क्लियर कर दो यार।
बहुत सारे ग्रे एरिया जहाँ पे कब कीपर मारे कब ना मारे, वो एम्पायर ओपिनियन में वो इतना ग्रे एरिया है कि वहाँ फंस जाता है आदमी। उनको थोड़ा और स्पेसिफिक कर सकते हैं, ब्रेक करें उनको। जैसे सर वो इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसमें आई थिंक विराट कोहली ने बॉल मारी थी, लास्ट के 2 गेंदों पे शायद 2 या 3 बॉल्स बची थी, उसने बॉल मारी थी, नो बॉल थी उन्होंने मारी, बट वो हिट विकेट हो गया, बॉल कहीं और गई, बट ही टुक। हाँ, 9 बॉल पे बोल्ड हुआ एंड नो बॉल बोल्ड नहीं होता, बॉल पीछे रन है लॉ में, ठीक ही तो किया। हाँ, दैट वाज अ वंडरफुल गेम अवेयरनेस बाय विराट कोहली एंड अश्विन। यस, पीछे पाकिस्तान विराट कोहली एंड आई थिंक अश्विन, नो आई थिंक अश्विन, दिनेश कार्तिक, पता नहीं, विराट तो पक्का था, बट इट वाज हिज ग्रेट अवेयरनेस ऑफ द गेम, नोइंग द लॉस कि नहीं ये बॉल प्ले में है। वो पीछे चिल्ला रहा था रिजवान, यस वो वाला एग्जैक्टली, वो जो लगाता है, यस, कि नहीं है नहीं है नहीं, अरे हाँ, वो नहीं रुके। हाँ, कोई अगर ऐसा प्लेयर तो इसको गेम अवेयरनेस नहीं तो वो रुक जाता, वो रन Exactly. खत्म हो जाता। हाँ, मैं 9 बॉल पे आउट नहीं है, बॉल गई, 3 रन लिए, 3 रन लिए, and I think that created a lot of difference. गुड गेम अवेयरनेस, वो ठीक है, लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हुआ ना कि वो कल परसों जो हुआ है, वो जो बॉल उठा रहे हैं वो दे रहा है, वो बाहर खड़ा है, फिर वो कह रहा है मैं आउट नहीं हूँ, अरे भाई पहले अंदर जा, versus Bangladesh, दैट इज पुअर गेम अवेयरनेस। So From Salman, from Salman's batsman, point- yeah. from Salman's Some point of batsman, view. yeah. Yeah. he should be inside ना, तू क्या कर रहा है भाई, वो कोई पर सर वो फिर स्पोर्ट्समैनशिप पे भी बात आ गई ना यार, वो कि मैंने बोला वो ऐसा ढक्कन है ना खोलो। अभी उनके कैप्टन ने बोला, बाद में वो जो बोलते हैं ना इंग्लिश हिंदी समझ ही नहीं आता मेरे को तो क्या बोलते हैं, मुझे अक्षर पटेल अच्छा लगता है, स्ट्रेट अवे जो लैंग्वेज आती है आराम से बोलता है, बिकॉज लैंग्वेज कोई बहुत आपकी अचीवमेंट नहीं है, इट्स ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यार। Yeah. क्रिकेट में स्पोर्ट्स में स्किल चाहिए, वो अंग्रेजी नहीं चाहिए उनको, वो अंग्रेजी बोलता है समझ ही नहीं आता। उसने बोला कि प्रीवियसली वी हैव नॉट डन इट डू करके, और कभी अरे भाई याद कर सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था आपने ऐसे ही, टेस्ट मैच हार गई थी इंडिया कैलकाटा में, शोएब अख्तर था, यस, तो कहाँ बुलाया था, कहाँ कह रहे हैं ऐसे, मतलब पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा था। तो फिर तुम्हें भी क्यों बुलाएं फिर लोग, जब तुम नहीं बुलाते तो। इंडिया लॉस्ट द टेस्ट मैच, सचिन अंदर थे, वो टक्कर मारी, वो बाहर हो गए, बॉल लग गई, दे शुड हैव विथड्रॉ द अपील, दे न्यू व्हाट इज हैपनिंग। तब कहाँ गए स्पिरिट, और वो गारंटी ले रहा आज का लड़का कि पहले भी कभी नहीं हुआ, और रहने दो यार वो ढक्कन ना खोलो। जब लॉ की बात आए तो मुझे कई बार ये डिस्कशन वाला पॉइंट, जैसे आप वो रनआउट पे भी बात करते हैं, अश्विन के लिए बोलते थे, अब लॉ में है तो है भाई, तू कहाँ जा रहा है भाग के, अगर तुम तो आगे भी खड़े हो, तुम और आगे भाग गए, तुमने तो 15 कदम भागना है, तो बॉलर कहाँ जाएगा। पर सर हमेशा उस चाहे जो अश्विन का भी इंसिडेंट था, उसके बाद विमेंस इंडिया की विमेन, आई थिंक शेफाली वर्मा के साथ भी सेम, नहीं शेफाली वर्मा नहीं, दीप्ति, उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था, एंड बहुत ट्रोलिंग हुई थी। वो भी दीप्ति का आई थिंक इट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड इट वाज दे बोथ ऑफ देम फेस्ड मैसिव ट्रोलिंग सेइंग दैट दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गेम। आपने फिर लॉ में कुछ करिए, स्पिरिट का अलग से कॉलम बनाइए कि ये स्पिरिट में आएगा, ये इतनी स्पिरिट में आएगा, ये इतनी स्पिरिट में आएगा, स्पिरिट निकाल लो। वो बहुत डिबेटेबल पॉइंट है, आई थिंक वो सब्जेक्टिव है। किसी के रिलेशन कैसे हैं, 2 टीम्स के रिलेशन क्या है, 2 नेशन के क्या हैं, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स के रिलेशन क्या है, वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो फिर सर व्हाट इज योर टेक ऑन इंडिया नॉट शेकिंग हैंड्स विद पाकिस्तान? दैट इज नथिंग इन द लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉज। कहाँ है लॉ में हाथ मिलाना है? जब मैंने अंपायरिंग शुरू करी है तो हाथ मिलाने कल्चर तो नहीं था। अच्छा, तब नहीं था? मैंने रणजी ट्रॉफी किया, अब 2000 में शुरू किया, कौन हाथ मिला रहा, हाथ तो नहीं। ये हुआ है जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू हुई है वर्ल्ड वाइड, उसके बाद शायद ये बाकी गेम से पकड़ा है। बुरा ही नहीं, अच्छा है, बट ये तो कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है। आई एम नॉट कंफर्टेबल नॉट। मैंने देखा है कि लोग आ रहे हैं, जैसे अभी आईपीएल में करीब एक टीम के 30-40 लोग होते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ मिला के, तो हम लोग हाथ मिलाते हैं मैच में, 60-70 लोगों से हाथ मिलाते हैं। उसमें कई लोग नहीं आते हाथ मिलाने, भाई कोई पैड उतार रहा है, कोई टॉयलेट में है, समवन इज टायर्ड, तो उसमें फिर कहेंगे उसने नहीं मिला, उसने मिलाया, तो हाथ मिलाने का तो कुछ है नहीं। और ठीक है, उनको नहीं कंफर्टेबल है, नहीं मिला रहे, लॉ में कुछ भी नहीं है ऐसा। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लॉज, टॉक अबाउट लॉज। स्पिरिट और बहुत सारी चीजें हैं, आप अंदर कितना टीजिंग कर रहे हो एक दूसरे को, स्लेजिंग कितनी हो रही है, वो भी पार्ट है ना फिर। तो फिर आई थिंक मेंस वर्ल्ड है, इसमें ये स्पिरिट उसका ज़्यादा रोल अब मॉडर्न क्रिकेट में बचा नहीं है। सब कुछ इतना कैमरे आ गए हैं, तो क्या स्पिरिट है यार, जो है जो नहीं है नहीं है भाई, लॉ में से हटा दो। राइट। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट, जो हम जहाँ से ये शुरुआत हुई इस बात की, कि आपको ऐसे कौन से लॉज है जो आपको लगता है कि ये तो हटा देने चाहिए? यही टाइप के, इनको क्लियर करो भाई, ये है कि नहीं है, और कुछ ऐड करने चाहिए जिसमें ऑटो नो बॉल बहुत अच्छा है, और जो अबव वेस्ट नो बॉल है, हाँ, जो कंपलसरी ऑटो नो बॉल कैटेगरी में आना चाहिए। हर वो बॉल जो अबव वेस्ट हो सकती है या है अपराइट पॉपिंग, विच इज वेरी
बहुत डिफिकल्ट है। बैट्समैन आगे चला गया, बॉल ऐसे आ रही है, इतने स्पीड पे आ रही है, स्क्वायर लेग वाले को बड़ा डिफिकल्ट है वो जज करना। फिर आप उसको दिखाते हो मशीन से, तो पहली मशीन से देख लो, वो ऐड होना चाहिए, ये ऑटो नो बॉल में आना चाहिए अबव वेस्ट, इज मोस्ट डिफिकल्ट नो बॉल, राइट। बिकॉज बैट्समैन शिफ्ट करता है, आपका जो कंसीडिंग एरिया वो पॉपिंग क्रीज है, तो बैट्समैन तो उधर है, वो इधर है, वो बॉल कितना आएगी यहाँ पे कभी कौन बताएगा यार। जो ऑब्वियस चीजें बताएंगे, लेकिन जो टाइट कॉल है वो तो बहुत मुश्किल है। एंड मुझे फिर से वही इंडिया पाकिस्तान वाला मैच याद आ रहा है, क्योंकि उसमें ये अबव वेस्ट नो बॉल थी व्हिच विराट कोहली आस्क्ड फॉर, एंड अगेन द पाकिस्तान कैप्टन वाजंट हैप्पी। ही जस्ट लुक्ड एंड अंपायर गेव। उन दिनों नहीं था तभी, तो अंपायर टच एंड गो कॉल होती है ना, आप 100% नहीं हो सकते एज ए ह्यूमन। सर, पर आपको लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था और अब जहाँ पे जितनी टेक्नोलॉजी पहुंची है, या बीसीसीआई ने पर्टिकुलरली कितने एफर्ट्स डाले हैं अंपायरिंग को और फीजिबल, कंफर्टेबल और अच्छा बनाने के लिए, कितना बदलाव आ गया? अभी हमने एग्जाम लिया था 3 साल पहले, सिर्फ प्लेयर्स का एग्जाम था वो। पहले होता था कि इतने 20 रणजी ट्रॉफी होने चाहिए, अब इन्होंने किया 10 कोई भी बोर्ड के मैच खेलो तो यू कैन गिव दैट एग्जाम, उसमें थ्योरी थोड़ी कम होती है। वो अच्छा स्टेप था, 37 लोग पास हुए थे। मैं नितिन और सब एग्जामिनर थे, और वो शायद अच्छा बैच है, उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और ट्रेनिंग काफ़ी होती है, हर साल एक वर्कशॉप होती है बीसीसीआई की, और हर स्टेट का भी कुछ ना कुछ होता है। 5-6 जगह तो मैं ही जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए। मैं जम्मू कश्मीर गया था, तुमने नाज ने बुलाया था मुझे, एंड गिव ए फ्री हैंड कि जो आपने करना भैया कीजिए, बिकॉज आपका काम है, जैसे आपको ठीक लगे। सो ट्रेनिंग का अच्छा प्रोग्राम है, पैसे अच्छे मिलते हैं अभी अंपायरों को, आपको पता है 40,000 मिलते हैं एक दिन के। आप अंडर 16 का मैच करो तो भी, टू ए न्यू एम्पायर ऑल्सो, प्लस ऑलमोस्ट 5-स्टार फैसिलिटीज, एयर फेयर, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग। अच्छा करियर है भाई। आपने अगर 50 दिन अंपायरिंग कर ली, 20 lakhs हो गए वाइट मनी, एंड विद इन 3-4 months। कौन से प्रोफेशन में है व्हेन यू आर स्टार्टिंग? आपको शुरू में कौन 20 लाख दे रहा है 4 महीने के? जाओ, कौन सा कोर्स है वो, अनलेस कि आप कोई बिल्कुल ही राइट। गुड करियर है यार। सर, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट बोला जाता है कि क्रिकेटर्स के लिए ना एक नर्चरिंग ग्राउंड है, आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो आप, एंड सेम फॉर एम्पायर्स। उसके बाद भी आपका इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बीच में लास्ट के 17-18 साल से आईपीएल आ गया। या हाउ मच डू यू थिंक आईपीएल एक अंपायर को हेल्प करता है? बहुत अच्छा। मैं तो आईपीएल से इंटरनेशनल अंपायर बना। आपके पास सारे वो बड़े प्लेयर होते हैं, सारी वो टेक्नोलॉजी होती है, और बहुत प्रेशर होता है आईपीएल में। देखिए, कई बार तो मुझे लगता है कि हालांकि मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कर रहा, आपकी बहुत सारी इंटरनेशनल टीम है जो आपको आने से पहले पता है कि वो ग्रेड की नहीं है। थी ना इसमें टीमें बहुत सारी, नाम ले लूंगा स्वीट कंट्री की। आईपीएल में ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरी टीम हैज 4 प्रोफेशनल्स, तो आपकी सारी टीम बराबर होगी। इसलिए आईपीएल में आपको कई बार लगता होगा मैच खत्म हुआ दोबारा शुरू हो गया यार, लोग कहते हैं जी ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई, वो टीम का जो सेटअप है वो बना ही ऐसे है कि 20 ओवर इज टू टाइट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ टैलेंट इनसाइड। फिर आपके डोमेस्टिक प्लेयर उनके साथ खेलते हैं, उनकी जो ग्रोथ है, वो जो प्लेयर 10 साल में सीखेगा 1 साल के आईपीएल में सीख जाता है। सेम विद अंपायर्स, अगर आप अच्छे अंपायर हैं तो। मैं सब जब बात करता हूँ उनकी, जिनमें स्किल होती है, जिनमें नहीं है उनको 100 साल कराओ ऐसे रहेंगे। एंड सर, एक टेस्ट मैच में अंपायरिंग करना और एक T20 मैच में कितना डिफिकल्ट होता है? ये बहुत दोनों बड़े। T20 में कभी कुछ नहीं हो रहा होता, एकदम से होता है और मैच चेंज, ये सडन है। टेस्ट मैच एक डिफरेंट प्रेशर है यार, दैट इज हाईएस्ट ग्रेड ऑफ क्रिकेट। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका प्रेशर हैंडल करना, आपका स्टेमिना, डीलिंग विद प्लेयर्स, बिकॉज एवरी डे विल गेट डिफरेंट प्रॉब्लम। टेस्ट मैच तो असली है, तो मतलब उसको आप नहीं मिला सकते, बट T20 में सडन डेथ जैसा है, वेरी डेंजरस समटाइम, वन स्मॉल थिंग एंटायर गेम विल चेंज। तो डिफरेंट है, मतलब कैसे बताऊं। राइट। नहीं सर, बट एक प्रेशर, फिटनेस, हर पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट मैच नंबर 1 फॉर प्लेयर्स आल्सो, फॉर अंपायर्स आल्सो। और क्यों सर अंपायर्स के लिए क्यों? आपको 5 दिन काम करना है, बहुत सारे फेजेस आते हैं गेम में, ऊपर नीचे होता है, पिच का बिहेवियर चेंज होता है, प्लेयरों का स्टाइल चेंज होता है खेलने का, मैच का एटमॉस्फेयर चेंज होगा, कभी एग्रेसिव होगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा। रियल अंपायर तो टेस्ट अंपायर ही है जी। रियल अंपायर टेस्ट, मतलब मैं किसी को हम नहीं कर रहा, बट जिसने टेस्ट मैच किया, आई थिंक वो एक कहता है मास्टर्स कर लिया, वो है मास्टर्स कर लिया। आई थिंक दैट्स अ राइट वे टू पुट इट। सर, एक और चीज़, जैसे आपने बोला कि आप जम्मू कश्मीर गए थे, मिथुन मन्हास सर इनवाइटेड यू, तो सर अभी जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी जीती भी, तो आपको क्या, मतलब जितना टाइम आपने वहाँ बिताया, ऑन ग्राउंड टैलेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पायरिंग भी अगर हम बात करें, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग में
मैंने पर्सनली काफ़ी वो चीज़ कवर की हुई है, बट एम्पायरिंग में बात करें तो क्या टैलेंट है वहाँ पे? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी वहाँ पे T20 क्रिकेट बहुत होती है जम्मू और कश्मीर में, बहुत रफ लड़के हैं, थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है, फाइन ट्यून करना है। वहाँ पे बहुत सारे अंपायरों को मैंने देखा, वही वाला एंगल है जहाँ पे कम अंपायर होते हैं वहाँ पे पुलिस वाला काम बड़ा रहता है। अंपायर समझते हैं मैं अंपायर आ गया मतलब मैं हूँ यहाँ का नहीं भाई, बिल्कुल आप बाद में, आपने सिर्फ जो मैच चल रहा है उसको चलाना है और विद इन द लॉज, आपका इतना ही काम है। वो उनको दिया, वो शायद उनको नहीं पता था, दे वो वेरी हैप्पी। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिखाए हाउ टू अप्रोच सर्टेन प्रॉब्लम्स। देन वी हैड ओपन क्वेश्चन आंसर, दे यूज्ड टू आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछो आप, गली कुछ भी। मैं फिर उनको कहते हैं सर ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा सिंपल ही है गेम, आपको खाली आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, आपको लग रहा है गलती ना हो जाए, नहीं होगी गलती। आप क्या कीजिए, एम्पायरिंग का बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप मेजर चीजें कवर कीजिए, माइनर अपने आप दिख जाएंगी। आप माइनर के लिए जाओगे तो आपसे बोल्ड ही मिस हो जाने वाला है। मेजर में सो यू आर मेकिंग वर्क कॉम्प्लिकेटेड, सिंप्लीफाई योर जॉब। टेक्निक क्या है, टेक्निक यही तो है चीजों को सिंप्लीफाई करना। सो अंपायरिंग टेक्निक पे मैं बहुत बात करता हूँ कई बारी, जो मैंने सीखा है बाकी लोगों से या जो भी मुझे जहाँ से जो मिलता है मैं ले लेता हूँ। आई थिंक टेक्निक मेरा एक पॉइंट है जहाँ मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ। सर्टेन इश्यूज कैसे हैंडल करने, सर्टेन कॉल्स को कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप परसेंटेज अंपायरिंग कैसे ठीक कर सकते हैं। इट कांट बी 100%, बट हाउ कैन यू इंक्रीज योर डिसीजन मेकिंग परसेंटेज वाइज बेटर। राइट, तो उस पे आप वो देते हैं। और सर जितने भी अभी आपके करंट स्टूडेंट्स हैं या जितनों को भी आपने ट्रेनिंग दी है, क्या कोई एक डेमोग्राफिक है जहाँ से लार्जली इस सेक्शन ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन से लोग ज़्यादा एम्पायरिंग में अट्रैक्ट होते हैं, कोई रीजन से पर्टिकुलरली ज़्यादा एम्पायरिंग में आते हैं? साउथ में काफ़ी लोग आते हैं, उसका रीज़न है जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें लैंग्वेज का बहुत रोल है। सो और बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, रहने दीजिए। सर एक और चीज़ मुझे जो मतलब एकदम से ऐसे इट जस्ट क्लिक कि इंडियन एम्पायर्स और आपने इंटरनेशनल एम्पायर्स के साथ भी कितनी बार काम किया है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? आई थिंक आवर एम्पायर्स आर वेरी गुड, बट थोड़ा उनको बैकअप पीछे से रहे उनको, और थोड़ा एंजॉय करें एम्पायरिंग को, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा हंसे यार, लगे कि आपको लगता है इंटरनेशनल एम्पायर्स थोड़े सीरियस होते हैं? नहीं होते, बाकी हमारे वाले ज़्यादा सीरियस होते हैं। अच्छा। बट अच्छे लोग आ गए हैं, नितिन अच्छी कर रहा है। थोड़ा रिलैक्स लगे यार टीवी पे, यार ऐसे लगेंगे कि मतलब अच्छा काम करें, लेकिन वो ऐसे लगते हैं कभी कभी कि वो थोड़ा एक एंगल है जो ऐड करना चाहिए हमारे एम्पायरों को। बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, नए लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं, लॉट ऑफ गुड एम्पायर्स आर कमिंग। नहीं पर सर जितना मतलब थ्रू आउट योर करियर जब भी आपने किसी इंटरनेशनल एम्पायर के साथ कोई मैच वो किया है तो are they like as compared to Indian empires, where do you rank them? I think we are at par, but the difference is if they do something just forget. Our empires they remember it. यार पांच मैच पहले ये हो गया था, भूल जा यार, चलना आगे चल। हम लोग बहुत, आई थिंक हमारे यहाँ क्रिकेट ऐसे है कि बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं यार, इतना सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। पर सर ऑन ऑफ रखो यार, आप हमेशा ऑन ही रहोगे तो पागल हो जाओगे। पर सर सोशल मीडिया जिस तरह से चल रहा है लास्ट के 10-15 ईयर्स में, आई डोंट थिंक वो क्रिकेट इतना बड़ा इमोशन बन गया ना कि वो आपको स्विच ऑफ होने ही ना, आप चाहो भी एज अ क्रिकेटर और एज एन एम्पायर आप स्विच ऑफ हो तो वो इतना सेंसिटिव और इतना इमोशनल टॉपिक बन गया है, तो वो आपको सोशल मीडिया को होने ही नहीं देगा। नहीं, आप जितना आपका काम है, ट्रेनिंग का पीरियड हो गया, तैयारी होगी मैच की, जो भी आपका मीटिंग है वो करो, मैच में एकदम फिट रहो। दिखना चाहिए ग्राउंड पे एम्पायर चल रहा है, वो ऐसे ऐसे करके ना चलें। वो भी एक प्रॉब्लम है, फिटनेस भी प्रॉब्लम है बहुत सारे एम्पायर्स की। और जब मैच खत्म हो गया तो मजे लो यार, ये क्या 24 घंटे वो ये हो गया, वो वाइड हो गया ना, वर्क ऑन इट, हाउ टू करेक्ट इट। 24 घंटे ब्रेकफास्ट पे वही एम्पायरिंग, अरे रुक जाओ यार। पर सर फिटनेस एम्पायरिंग में क्या रोल प्ले करती है? काफी रोल है मॉडर्न क्रिकेट में, तो फिटनेस का बहुत 50% रोल है। आपकी आई साइट, आपका फिटनेस, हाउ यू मूव, बिकॉज एम्पायरिंग में और खेलने में एक प्रॉब्लम है कि एकदम भागना पड़ता है। एथलेटिक्स नहीं है कि आपने सीटी मारी और यू स्टार्ट, यू हैव टू रन। अंपायरिंग में और खेलने में, फील्डिंग में आपको पता नहीं होता कब भागना है, फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, तो आप वो चीज ध्यान रखने, क्योंकि आपको बॉल आएगी, लगेगी, फिर नहीं पूछेगी आप कौन हो। राइट सर, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? बहुत सारे, पीछे लग जाती मेरे को बॉल, वो मैक्सवेल ने कैच पकड़ लिया, एकदम रोहित ने मारा था, एकदम मेरे मुंह के सामने पकड़ा ऐसे, वो पता नहीं मैं कितना हुआ तो था टेढ़ा, अब मुझे नहीं पता कहाँ जाती, बट नहीं लगी। काफी हुए, एक सीरीज तो पूरी थी जिसमें मेरे ऊपर उन्होंने एक स्टार टीवी वाला प्रोग्राम ही बनाए थे कुछ 1-1.5 मिनट का। शिखर मेरे को बोला यार अंपायर को दिखा रहे हैं, क्या सेटिंग चल रही है आपकी? मैंने कहा मेरी नहीं चल रही है, मैच ही तुम नंबर रन वाला खेल रहे हो, वो कुछ तो दिखाएंगे। राइट,
तो एक तो पूरी सीरीज थी इंडिया साउथ अफ्रीका, T20 भी था, बहुत सारी बॉलें मेरे पास आई, मैं हर बार बचा किस्मत से. बट आई थिंक यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, यू नीड फिटनेस एंड यू शुड हैव अ बॉल सेंस. When to watch, what to watch. बॉल सेंस. Yes. और आपको लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है? बिल्कुल बिल्कुल. बॉल्स नहीं, मिसिंग नहीं है. अच्छा, मिसिंग नहीं मैं है. बता रहा हूँ कि बाबा होनी तुम चाहिए. ऐसे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा. बट आई थिंक फिटनेस अभी, क्योंकि बहुत तेज गेम हो गया है, बैट देखो कैसे आ गए हैं, शॉट बहुत सारे मार रहे हैं लोग, उल्टा भी मार रहे हैं, सीधा भी मार रहे हैं, अब तो ऐसे मारना रह गया. तो कभी बॉल कहीं से भी आ सकती है. थ्रो करते हैं लोग, और नाइट मैचेस में लाइट होती है, ड्यू भी होती है, बॉल खासकर स्क्वायर पे बॉल पड़ती है तो डिफरेंट पेस होता है, आउटफील्ड पड़ेगी डिफरेंट पेस होगा, तो वो गेम सेंस, वो सब कुछ होना चाहिए. एम्पायर को बहुत आजकल बॉल पीछे पड़ी रहती है. सर जैसे क्रिकेटर्स बहुत लाइक अभी बहुत रीसेंट एग्जांपल है, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते और हार्दिक पांड्या वाज हैविंग अ मोमेंट विद हिज गर्लफ्रेंड एंड दैट सॉर्ट ऑफ पिक्ड अप. मतलब छोटी छोटी चीज़ें यू नो उठ के कंट्रोवर्सी बन जाती हैं. FIR तो बैठे बैठे FIR फाइल हो जाती है. तो अभी थैंकफुली एम्पायरिंग उस चीज़ से बची हुई है, पर अगर जैसे जैसे स्टार कल्चर एम्पायरिंग में भी आएगा तो एक यू नो आज के टाइम पे आप इतना लाइक यू आर जस्ट ओपन टू लाइक सो मच ऑफ सोशल मीडिया इज देयर. होने दो ना कंपटीशन, इतनी सारी पॉपुलेशन, कंपटीशन होना चाहिए ना हेल्दी. जो सर बेस्ट होगा वो ऊपर सोशल आएगा मीडिया ना. पे हेल्दी कंपटीशन, वो कंपटीशन, वो तो क्रिटिसिज्म है. उसमें घुस के रहो ज्यादा, अपने काम पे ध्यान लगाओ ना. थिंग्स विल गो एंड कम, यू फोकस इन योर वर्क. सर कोई आपके लिए सबसे स्ट्रेसफुल मैच कोई ऐसा रहा है, या कोई दो टीम्स आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि यार इन दो टीम्स के बीच में इट्स गोइंग टू बी टफ? बहुत सारे मैचेस ऐसे किए मैंने टफ, लेकिन जितने भी बड़े टफ मैच होते हैं वो सारे मेरे को इजी लगे बाद में. टफ मैचेस आर बेटर मैचेस. अच्छा. दो सो कॉल्ड वीक टीम खेल रही होती हैं तो बवाल रहता है पूरे टाइम, हर बॉल पे अपील, समझ नहीं आता उनको, आधी चीजें पता नहीं होती, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन. आई थिंक टफ गेम्स आर बेटर गेम्स, इजी गेम्स, इफ यू नो द जॉब. If you know the job, that is very important. So before we end this conversation, एक quick rapid fire करेंगे. और सबसे पहले म्यूजिक से ही स्टार्ट करेंगे. आपका फेवरेट हरियाणवी सिंगर? मुझे अभी कांडा और वो केडी अच्छे लगते हैं. अब सर ओवरऑल, मतलब आप हरियाणा की बात कर रहे हैं? नहीं पूरा बॉलीवुड, साउथ, अक्रॉस इंडिया, फेवरेट सिंगर? आजकल जो है ना, जो अपने बंगाली बाबू बहुत बड़े गाता है यार, वो नाम में मेरा ऐसे ही रहता है. यंग सिंगर यार, यंगेस्ट, नई ब्रांड में दाढ़ी वाला. कोई गाना बताइए आप उनका. अरे बहुत सारे गाने उसी के हैं यार. क्या गाता है वो, जो अभी धोनी से भी मिला, शायद उसने छोड़ दिया पीछे, कह रहे गाने नहीं गाएगा. अरिजीत. हाँ अरिजीत, क्या बढ़िया गाने गाता है. हाँ, वो मतलब मॉडर्न सिंगर्स में वो है क्वालिटी सिंगर है. और भी है, मैं नाम में बहुत गड़बड़ है मेरा. सर वन क्रिकेटर हु वुड मेक अ गुड हरियाणवी सिंगर? सहवाग थोड़ा काम करे. और सर किसी ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहेंगे एक हरियाणवी म्यूजिक वीडियो में? मैं और भज्जी. तो पंजाबी भी कर लेते हैं फिर तो? वो दोनों कर लेता है वो. चहल भी है वैसे. हाँ. रैना भी मल्टीटास्किंग है. पीयूष चावला है, काफी लोग हैं यार. काफी लोग, कंपटीशन आ सकता है एक्टर्स को क्रिकेटर्स से. आकाश भी है. आकाश एक डिफरेंट तरह का रोल कर सकता है. किस तरह का? जिसमें तेज आवाज बोलनी हो. अच्छा. वो बहुत हार्ड वर्किंग है और उसको जिस भी फील्ड में डालोगे वो. सर अगर मैं आपको बोलूं कि एक मूवी, उसका मतलब एक मूवी, आपका प्लॉट और आपकी स्टार कास्ट, तो क्या होगा? अरे बाप रे, विलन लूंगा मैं शिखर धवन को. विलन शिखर धवन, ओके. हीरो मेरे वैसे कैरेक्टर वाले रोल होंगे. मतलब 3 लीड एक्टर्स चलिए मान लेते हैं मूवी में है, एक तो फिर आप ही हो गए. मैं तो उसी साइड रहूंगा. विलन मतलब कुछ दम होना चाहिए यार. चलिए अच्छा. तो 2 विलन है, 2 विलन है, शिखर धवन और आप. तो 3 एक्टर्स आपको कौन लगता है? भज्जी फिट बैठेगा. भज्जी तो करता है सब मल्टीटास्किंग है, जैसे मोला. पीयूष चावला काफी काम कर लेता है यार. और चहल तो आजकल, चहल तो वो सारा जो जॉनी लीवर का डिपार्टमेंट उसको दे दो, ही विल हैंडल. अच्छा सर, एक गाना जो आपको मतलब इंस्टेंटली आपको डांस करने पे मजबूर कर देता है? गोली तो चलेगी. गोली तो. ठीक है. एंड सर, इफ यू हैड टू डेडिकेट योर डेब्यू सॉन्ग टू अ क्रिकेट मोमेंट, which one would it be? I think T20 last over 20 runs. That's your वो गाना आप उसको डेडिकेट करेंगे. थैंक यू. वेल आई थिंक ऑन दैट नोट
Thank you, sir. Thank you so much for taking our time. And it was a fruitful conversation. I think we got to know so much about umpiring and what goes. It's not as easy as it looks. Still a lot. Still a lot to. It's just 2% we have touched. Big topic. Right. Lot of stories, unlimited.